First of all, let me tell you that this video is going to benefit those students too who were complaining regarding the language issue, because the format I have made is totally in English language. So it will benefit you a lot, and the video shall be bilingual so that both the category of students shall be benefited. Okay, so see students, the happiness, the level of happiness which you got when I shown you 3 of my joining letters, that happiness was nothing in front of that one which you will get when you will really get your joining letters. Okay, and for that you need to hustle. Okay, so good things come to those who hustle. So before starting the strategy section wise, we need to discuss some of the very important points. So good morning, this is Sabia Ruksar, working as an RRB PO. As you already know, my dear friends, I have cleared 4 pre and mains last year. I have appeared for 2 of the interviews and got final selection in 3 examinations. So here I am going to share my honest strategy with you, with the learnings I have made from my success as well as some of the failures. I am going to guide you. Okay, before starting the strategy, let's discuss some important points. First of all, you need to promise yourself that you are going to take this job this time. You are going to take one of the seat, जो भी vacancy आती है, whatever the number of vacancies, it should not bother you. Okay, it should not bother you, and you are going to achieve your success this year, this time. Okay, so first and foremost कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है बिफोर स्टार्टिंग द स्ट्रैटेजी सेक्शन वाइज. यू नीड नॉट प्रिपेयर फॉर प्री ओनली. This mistake is done by many students. Once the notification will come now, everybody will just start to prepare for pre, and they will just not think about the mains as well as interview. See students, you need to clear mains also, you need to clear interview also for the final selection. Selection in only pre will not work for you, so we need to prepare for mains too, side by side. Okay, the next thing is we cannot skip current affairs. You need to study current affairs daily. You cannot cheat on this. Okay, current affairs daily के daily हमें पढ़ना है. The next thing is targets. टारगेट्स बनाकर अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, वो आपका बेस्ट एवर प्रिपरेशन है. बिकॉज कई बार हमें लगता है दैट वी आर स्टडिंग, ओके, हमारे पास सिर्फ एक बुक है और वी आर जस्ट वॉचिंग द यूट्यूब वीडियोज स्टडीज से रिलेटेड ही, बट वी आर जस्ट वॉचिंग एंड वी आर प्रिपेयरिंग विथ नो टाइमर, विथ नो टारगेट्स, एंड वी फील दैट वी आर स्टडिंग, बट we don't find any improvement in ourselves. The reason is we are not making targets, we are not achieving our targets. Okay, so we need to make targets. ये टॉपिक मुझे 2 आवर्स पढ़ना है, ये टॉपिक मुझे 1 आवर पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ना है, ये सारे मुझे ऐसे कॉलम्स बना लेने हैं, रोज बनाने हैं, और कॉलम्स बनाकर इसे डेली डेट वाइज टिक करना है कि आज की डेट में कौन कौन सा मैंने कर लिया. इससे क्या होगा, यू विल फील एनकरेज्ड, यू विल फील पॉजिटिवली मोटिवेटेड दैट यू हैव स्टडीड दीज मेनी थिंग्स. ओके, यू हैव स्टडी दीज मेनी टॉपिक्स. अदरवाइज आपको खुद अपना जो असेसमेंट है ना, वो सही से आप नहीं कर पाते हैं. इसलिए टारगेट बेस्ड प्रिपरेशन ही आपको करनी है. यू नीड टू मेक एंड यू नीड टू अचीव योर टारगेट्स डेली. द सेकेंड थिंग, द नेक्स्ट थिंग इज टाइमर. मैनी स्टूडेंट्स जस्ट प्रैक्टिस, दे डोंट अंडरस्टैंड कि वहाँ पे आपको प्रैक्टिस काम नहीं करने वाला है. आप प्रैक्टिस, एक बच्चा पजल बना ले रहा है 2 मिनट में, दूसरा स्टूडेंट बना ले रहा है 10 मिनट में. सो देर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, है ना, रिगार्डिंग पजल बन रहा है या नहीं. पजल दोनों बना ले रहे हैं, बट टाइम मैटर्स अ लॉट. So the student who will get selected is this one who is solving the puzzle in 2 minutes. So you need to practice everything with a timer with you. Okay, चाहे वो मोबाइल में आप डाउनलोड कर लीजिए टाइमर को, या अपने सामने एक फिजिकल वॉच रखिए, क्लॉक रखिए, लेकिन टाइमर के साथ ही प्रिपरेशन करनी है. बहुत सारे लोग इसको भूल जाते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट थिंग इज मल्टीपल रिविजन्स. वॉट एवर यू स्टडी यू नीड टू रिवाइज अलॉट. करंट अफेयर्स वगैरह आपको वीकली मंथली रिवाइज करते चलना है. बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड स्टैटिक में भी आपको फोकस रखना है. बिकॉज बहुत सारे लोगों का जो है पीओ मेंस में, जब अभी आरआरबी पीओ मेंस भी हुआ, एसबीआई क्लर्क मेंस हुआ, देन दे कंप्लेन दैट करंट अफेयर्स वाज जस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड. सो स्टूडेंट्स, यू नीड टू फाइंड आउट वेयर यू लैग्ड. क्या आपने बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ा था, और समझ लीजिए बिल्कुल ही आउट ऑफ द वर्ल्ड आ रहा है, देन इट इज कमिंग फॉर एवरीवन. द लेवल और द टफनेस इज फॉर एवरीवन, सो द कट ऑफ्स विल बी डाउन. सो यू नीड नॉट वरी अबाउट दैट. ओके, यू नीड टू गिव योर बेस्ट. आपको अपना बेस्ट देना है. बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस और स्टैटिक भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. एंड डोंट वेट अननेसेसरली फॉर एनी नोटिफिकेशन. नोटिफिकेशन का वेट ना करते हुए, वी नीड टू जस्ट स्टार्ट नाउ. द हिंदू एडिटोरियल, वी नीड टू लर्न, we need to read daily, we need to pick out one article, and we need to maintain the vocab diary
जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स लगते हैं उससे रिलेटेड आप निकाल कर उनके मीनिंग्स ढूंढ के एक वोकैब डायरी मेंटेन करिए या डिक्शनरी वगैरह डाउनलोड करके रखिए, वहाँ पर ही सेव कर सकते हैं। और दूसरी बात, किसी भी एक आर्टिकल को लेकर आपको समरी भी क्रिएट करनी है अपने ओन वर्ड्स में, ठीक है। ये आपको इंग्लिश में हेल्प करेगा, करेंट अफेयर्स में हेल्प करेगा, एंड ऑल्सो विल हेल्प यू इन डिस्क्रिप्टिव एज वेल एज इट विल हेल्प you in your interview. So this thing should not be skipped at any cost. The next thing is short notes which shall be made under short heads. मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कई बार कि जब आप करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो आपको किस तरीके से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं शॉर्ट हेड्स के अंदर। करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने वो आपको अच्छे से समझाया हुआ है, आप कोई भी करंट अफेयर्स का मेरा वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब कुछ सैक्रिफाइसेस की बात कर लेते हैं। यू नीड टू कट आउट योर सेल्फ फ्रॉम सोशल मीडिया, इवेंट्स, ओकेजन्स, गेट टुगेदर्स, कॉल्स, मैसेजेस, चैट्स एंड अननेसेसरी एवरी सच थिंग जो कि आपको थोड़ा सा स्टडीज से दूर ले जाता है, उन सबको आपको सैक्रिफाइस करना है कुछ ही मंथ्स के लिए फॉर योर सक्सेस, ओके। द नेक्स्ट थिंग इज मॉक टेस्ट। इसको भी हमें ध्यान में रखते हुए अपनी पढ़ाई करनी है। मॉक टेस्ट हमें हर दिन या हर ऑल्टरनेटिव डे देना है। किस तरीके से देना है आगे हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। द लास्ट थिंग बट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज आवर हेल्थ। हमें साथ ही साथ अपने हेल्थ को ध्यान देते हुए, बिकॉज कई बार मैंने ही ये गलती की है कि इतना ज़्यादा इनग्रॉस्ड हो जा रहे हैं हम पढ़ाई में कि हेल्थ को हम सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं। वी नीड नॉट सेक्रीफाइस अवर हेल्थ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर सेल्स। अच्छी डाइट और योगा वगैरह, भले 10 मिनट 20 मिनट्स हम टाइम निकाल रहे हैं लेकिन हमें ये सारी चीज़ें करनी है। सो दीज वेयर सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच वी नीड टू टेक केयर बिफोर मूविंग टू द स्ट्रैटेजी सेक्शन। नाउ लेट्स सी कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स में, सारे सेक्शंस में। Making this editorial notes, vocab diary, and starting the current affairs from the beginning itself, these are some extras which not everyone will do. So you need to do all these things, okay? And you need to master yourself, especially in quant section DI, reasoning में puzzles, and English में reading comprehension, or you can say reading. You need to master yourself in these areas, okay? Let's begin with the reasoning section. So when we talk about reasoning, the most important thing is puzzles. You cannot do without puzzles in reasoning, okay? So here I have mentioned पूरी analysis के बाद मैंने यहाँ पे सारे टाइप्स ऑफ पजल्स जो है ना वो पूरे मेंशन किए हैं। पजल्स हमको लगता है कि हाँ पजल्स ठीक है, 5 पजल्स या 6 पजल्स हम डेली प्रैक्टिस कर लेते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है दैट वी आर प्रैक्टिसिंग द सेम टाइप ऑफ पजल्स बट वी नीड नॉट डू दैट। इसलिए मैंने यहाँ पर ये सारे टाइप्स लिखे हैं ताकि आप इसको एक जगह पे, जैसे ये मैं दिखा रही हूँ ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। एंड just take the screenshot and ensure that whenever you are practicing 6 or 7 puzzles or 5 puzzles daily, then you are practicing the puzzles of different variety, not of the same variety. For that I have mentioned all the types of puzzles जो यहाँ पर हैं, और ये कहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसके बारे में भी बात करेंगे। बिकॉज हमें सपना नहीं आएगा ना कि हम ये वाला पजल मुझे कहाँ मिलेगा, वो वाला पजल मुझे कहाँ मिलेगा, तो आपको कहाँ पे इन सब का एक मतलब वन स्टॉप सोल्यूशन मिल सकता है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, ओके। And when you prepare for pre-level puzzles, you need to practice one mains level puzzle daily, okay? On daily basis, you need to find out one mains level puzzles and solve it daily, okay? Next thing is you have to remember that you need to practice with timer. I have already told you, आप टाइमर के बिना अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक क्वेश्चन भी अगर आप बना रहे हैं सिंपल से सिंपल, तो वो आपको टाइमर के साथ प्रैक्टिस करना है, सो दैट आपको पता रहे कि मैं ये इस टाइप का क्वेश्चन को कितनी देर में सॉल्व कर पाता हूँ, और अगर ये एडुकेट टाइम नहीं है तो एडुकेट टाइम क्या है उसके अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना है, ठीक है। हम अपने आप को तब तक मतलब एफर्ट लगाएंगे हम तब तक जब तक हम उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अ पजल नीड्स टू बी सॉल्व्ड, अ प्री लेवल पजल्स नीड टू बी सॉल्व्ड इन 1.5 to 2 minutes, okay? So if you are solving a pre level puzzles in 4 minutes or 5 minutes or more than that, then you need to understand that you need to practice with timer, and वो लेवल को आप 2 minutes तक लेकर आइए। For that the timer is must, okay? The next thing is coding and decoding 5 questions daily you need to practice, symbol based or alphanumeric or Chinese one, and one means coding decoding in alternative days, okay? सिलॉजिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मैंने एक क्लास सिलॉजिज्म से रिलेटेड ली है, आप जाकर सर्च कर सकते हैं चैनल पे, तो वहाँ पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने करवाए थे, और उसी तरीके से आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। 5 to 10 क्वेश्चंस डेली। ऑर्डर एंड रैंकिंग 5 क्वेश्चंस डेली, इनइक्वालिटी 5 क्वेश्चंस डेली, डिस्टेंस डायरेक्शन 5 क्वेश्चंस डेली, ब्लड रिलेशन एक ही करना है आपको जिसमें 5 क्वेश्चंस रहते हैं ना, और डिस्टेंस डायरेक्शन भी एक ही करना है जिसमें 5 क्वेश्चंस डेली रहते हैं। मिसलेनियस आपको करना है 5 क्वेश्चंस डेली, जो भी अदर टॉपिक्स होंगे ऐसे आप 5 क्वेश्चन करिए। और मशीन इनपुट आउटपुट भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन प्री में हमेशा आता नहीं है, इसलिए यू नीड टू प्रैक्टिस 5 क्वेश्चंस इन अ वीक,
ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको डेली प्रैक्टिस करना है. Critical reasoning forms a very important part when it comes to mains reasoning. Okay, so you need to learn critical reasoning, statement based questions and स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले क्वेश्चन आते हैं, कोर्सेज ऑफ एक्शन वाले क्वेश्चन आते हैं, वो सारे आपको पढ़ने हैं. बट वीक में एक बार आप 2 से 3 आवर्स क्रिटिकल रीजनिंग को देंगे. और ये आपको मेरिट शाइन करके एक चैनल है, उस पर इसके रिलेटेड कंटेंट बहुत ईजिली अवेलेबल है और सबसे बेस्ट कंटेंट अवेलेबल है. सो क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने आपको बताया मेरिट शाइन चैनल, ये आपको फॉलो करना है. अगर हम YouTube वीडियोस की बात करें तो ये जो 2 चैनल हैं वो आपके लिए बेस्ट रहेंगे फॉर पजल्स. ओके, अंकुश लांबा सर की 1000 पजल की जो सीरीज है अनअकैडमी पे भी फ्री आपको मिल जाएगी एंड YouTube पे भी वीडियोस डली हुई हैं. एंड स्टडी नीति में स्मृति मैम के बहुत सारे वीडियोस पजल्स से रिलेटेड डले हुए हैं, तो आप जाके इन दोनों को फॉलो कर सकते हैं फॉर पजल्स. ओके, सो इन रीजनिंग आपको वीडियोज अगर देखनी है तो ये दोनों चैनल बेस्ट हैं. If we talk about any book for reasoning, then Ace Reasoning by Adda 247 is the one. And if you talk about time, कि how much time we need to give for our preparation in reasoning, give 2 to 3 hours for reasoning. If we see, एक पजल में आपको 3 मिनट 4 मिनट्स, अभी बिगिनिंग की बात कर रही हूँ, उतना लगेगा. उस हिसाब से हम देखें तो ये 2 to 3 आवर्स मैंने बहुत ज़्यादा बताए हैं, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको बोले हैं ना, 5 क्वेश्चंस ऑर्डर और रैंकिंग के, इनइक्वालिटी के 5 क्वेश्चंस, तो ये 5 क्वेश्चंस आपसे अल्टीमेटली 2 मिनट्स में बनने चाहिए. आपका एफर्ट हमेशा ऐसा लगना चाहिए, ये चीज़ आप याद रखिएगा. तो उस तरीके से तो ये टाइम बहुत ज़्यादा है, लेकिन बिगिनिंग आप अगर कर रहे हैं अपने आप को उस लेवल तक लाने के लिए, आप अभी फिलहाल 2 से 3 आवर्स रीजनिंग को दीजिए हर दिन. Apart from all these things, you can also opt for the direct PDF courses which are made available by Guidely. मैंने मतलब पहले भी आप लोगों को इसको रिकमेंड किया हुआ है और बहुत सारे लोग आप में से ऑलरेडी इसके सब्सक्रिप्शन लिए हुए होंगे, है ना. तो ये जो PDF कोर्स होता है किस तरीके से होता है, देखिए, जिनको नहीं पता है वो देख लीजिए कि स्पेशल बंडल PDF कोर्स होता है हर एग्ज़ाम से रिलेटेड. या तो आपको पूरी प्रीलिम्स से रिलेटेड मिल जाता है, या तो ये पूरा कॉम्बो है प्रीलिम्स और मेंस का, ये कॉम्बो है मेंस का, ये कॉम्बो है प्रीलिम्स का. इस तरीके से अवेलेबल है. ठीक है, जब आपको कुछ भी नहीं सोचना है, पूरा लेना है, तो आपको ये ऊपर वाला लेना होगा. अदरवाइज आपको अलग अलग से भी अवेलेबल है. IBPS क्लर्क प्रीलिम्स, IBPS PO प्रीलिम्स, इस तरीके से अवेलेबल है. देखिए, हम लोग SBI PO का एक बार देखते हैं. ठीक है, तो सी माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको डे बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है. जैसे ये डे 1 है, तो रीजनिंग में ये सारी चीज़ें आपको करवाई जाएंगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ये सारी चीज़ें. इस तरीके से ये शेड्यूल पूरा डे 50 तक चलेगा. और इससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इसमें जो टारगेट्स हैं आपके, वो आपको फुलफिल यहीं पर करवा दिया जा रहा है. इसके लिए आपको स्पेशल एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है कंटेंट ढूंढने के लिए. सो यू कैन ऑप्ट फॉर दिस स्पेशल बंडल PDF बाय गाइडली. तो एक जगह पे आपको सारा जो है कंटेंट वो अवेलेबल हो जाएगा. And the price of this PDF course is very affordable. When you take combo, then also it is affordable. And जब आप अलग अलग एग्जाम वाइज लेते हैं तब तो बहुत ज़्यादा affordable है. You can even check yourself. And also you can use the code GS12 to get extra 12% off. Okay, so the link is in the description box. ये आपकी सारी चीज़ें हो गई रीजनिंग से रिलेटेड. Now let's move to the quant section. Just telling you a fact about DI in puzzles. In case of quant, it's DI, and in case of puzzle reasoning, it's puzzles. Okay, so the questions other than DI in quant, such as quadratic equation, number series, and approximation, simplification, every student is able to answer all these questions. Okay, and in reasoning, other than puzzles like inequalities and syllogism and distance, direction, blood relation, every student is able to answer all these questions. बस the difference is that they take more time. जो बहुत एक अच्छा aspirant student है, जिसने बहुत अच्छे से attempt करके आया है, and the one who has given an average attempt or below, difference is they give more time to these parts and they are not able to get enough time for DI and puzzles. So you need to reach to that point where you are solving these parts very fast, so that you get enough time for puzzles in reasoning and enough time for DI in quant. Then only you are ahead of everyone. Okay, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, ये मैं आपको एक फैक्ट बता रही हूँ. Okay, now let's move to quant section. So in case of DI, you need to solve 5 questions daily. So similarly, like in reasoning, we saw various type of puzzles. In quant, we are seeing various type of DIs like bar charts, bar graphs, table charts, Venn diagram based DI, caselets, pie plus table chart, radar graph, mixed chart DI, missing DI, line plus pie chart, and all these type of things. Okay, this type of DI. So
आई टोल्ड यू माई डियर फ्रेंड्स, जब आप वो गाइडली का PDF बंडल, PDF कोर्स या कोई भी अलग से स्पेशल PDF कोर्स लेंगे ना, तो वहाँ पे आपको ये ऑलरेडी ये सारे डे बेस्ड आपको हर दिन जब भी करवाया जाएगा तो इनमें से वो शामिल रहेगा, वो इंक्लूडेड रहेगा। तो आपको वहाँ पे इसलिए मैं रिकमेंड कर रही हूँ ना, क्योंकि आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, वो आपके पास ऑलरेडी सब कुछ मटीरियल दिया हुआ रहेगा। आप अगर वो कोर्स ले रहे हैं या नहीं भी ले रहे हैं, आई हैव गिवन यू ऑल दीज टाइप्स, ताकि आपको ध्यान में रहे कि आप ये सारे जो हैं उनको हर दिन आप करें। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइप का, जैसे टेबल चार्ट हो गया या केसलेट हो गया, आप एक ही टाइप का DI कर रहे हैं तो इसमें आप लूज़ कर रहे हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड ये सारे टाइप ऑफ DI को आप डेली प्रैक्टिस करिए, 5 DIs डेली, ओके। और इसके साथ साथ आपको एक मेंस लेवल DI प्रैक्टिस करनी ही करनी है, ठीक है। कहाँ से मिलेगा कंटेंट हम बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन 10 क्वेश्चंस डेली, अप्रॉक्सीमेशन 10 क्वेश्चंस डेली, नंबर सीरीज 10 to 10 क्वेश्चंस डेली, 10 ऑफ मिसिंग एंड 10 ऑफ रॉन्ग नंबर सीरीज। जब आप रॉन्ग नंबर सीरीज पढ़ते हैं, बहुत सारे अलग अलग आपको पैटर्न मिलते हैं, तो उसका एक नोट्स बनाना आप स्टार्ट करिए, क्योंकि कई बार ऐसे पैटर्न होते हैं जो आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं रहा होगा। देन यू नीड टू मेक नोट्स ऑफ दोज पैटर्न्स जिसके बारे में आप बिल्कुल भी अवेयर नहीं थे। बाद में ये होता है लास्ट मोमेंट रिवीजन के टाइम पे आपको ये पैटर्न वाला नोट्स जो है वो काम आएगा, क्योंकि आप एक बार में ही सारे पैटर्न्स को एक जगह पे देख लेंगे कि ऐसा भी आ सकता है। तो ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ उसको नोट डाउन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 10 क्वेश्चन ऑफ एवरी टाइप, क्वांटिटी बेस्ड सम्स जो Q1 और Q2 वाले आते हैं, डाटा सफिशिएंसी 5 क्वेश्चन एंड उसके बाद आपका जो अरिथमेटिक पार्ट है ना वो बिल्कुल आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको बताऊंगी अभी चैनल कहाँ से आपको करना है। एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन और प्रॉफिट एंड लॉस, इस पे आपका स्पेशल फोकस होना चाहिए। दैट मीन्स आप सबसे पहले ये चैप्टर्स को क्लियर करिए। सबसे पहले जब आपका ये हो जाएगा ना, तब आप ये लाइन से चैप्टर्स पढ़िएगा। करियर डिफाइनर करके चैनल है, करियर डिफाइनर, ठीक है। सर ने सारे के सारे चैप्टर बेस्ड आपको वहाँ पे वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहे वो पार्टनरशिप हो, CISI, टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, ट्रेन्स, एजेस, पाइप्स एंड सिस्टम्स, बोट्स एंड स्ट्रीम्स, स्पीड एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ये सारे चैप्टर्स हैं। आप सबसे पहले इसको करिए और उसके बाद इसको करिए, और ये तो आपका फिर कभी छूटना ही नहीं चाहिए। इसमें से कुछ चीज़ें आप ऑल्टरनेटिव डेज में कर सकते हैं, जैसे कि डाटा सफिशिएंसी वगैरह, है ना, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जैसे सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज, ये यू नीड टू डू इट डेली, ओके, डेली। एंड दिस डाटा इंटरप्रिटेशन ऑल्सो 5 क्वेश्चंस डेली। और साथ साथ में आपका ये चैप्टर वाला प्रिपरेशन जो है वो चलता रहना चाहिए। जो आपका एरिथमेटिक पार्ट है ना, ये आपको DI में, प्री में भी काम आएगा और मेंस में तो सबसे ज़्यादा काम आएगा। इसलिए यू नीड नॉट स्किप एरिथमेटिक एट एनी कॉस्ट। यू नीड टू लर्न ईच एंड एवरी चैप्टर डेडिकेटेडली, एंड आई हैव टोल्ड यू द चैनल करियर डिफाइनर फॉर इट, ओके। As I told you, for the miscellaneous portions other than DI, you need to have a great calculation speed for quadratic equation, or either it be simplification or approximation or number series. You need to have a great calculation speed, and for that you need to learn tables up to 20, squares up to 30, cubes up to 20, squares, square roots tricks, cube roots tricks, multiplication tricks, fraction to percentage conversions, and this one is the most important. If I talk about this one, is the most important thing, okay. क्वांट के फुल स्ट्रैटेजी वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, टेलीग्राम में भी मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया था। इफ़ यू डोंट हैव फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन्स का पूरा जो एक चार्ट होता है, तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे फिर से दे दूंगी, ठीक है। इन सभी का रिविजन हर दिन करना ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आप एक जगह सबसे पहले इसको मेंटेन कर लीजिए, इसका एक नोट्स, और डेली बिफोर स्टार्टिंग द क्वांट सेक्शन जो आप प्रिपरेशन करते हैं उससे पहले इसको एक बार पूरा आपको रिवाइज करना है। सी फ्रेंड्स, इट took me a lot. It just took a toll on my head to prepare all these strategy videos, and ये वाला तो बहुत ज़्यादा ही लेंदी हुआ है, पर फिर भी आप देख रहे होंगे कि मैंने इसके पीछे बहुत मेहनत की है और आपको इसका फ्रूट भी मिलेगा, ठीक है। अल्टीमेटली आप एट द एंड ऑफ द वीडियो बहुत कुछ यहाँ से लेकर जाएंगे। तो काइंडली इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड कि वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स, ओके, इफ पॉसिबल। उसके बाद देखिए, जो भी कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूलाज, रूल्स वगैरह होते हैं लास्ट मिनट रिविजन के लिए, जो भी चीज़ें आपको लगती हैं अलग से पैटर्न, जैसे नंबर सीरीज के बारे में मैंने बोला, जो कुछ नया पैटर्न लगे, या SI CI आप पढ़ रहे हैं उसमें कुछ नया फॉर्मूला आपको दिखा, तो कोई भी चीज़ आपको जब थोड़ी सी अलग लगती है जो आपको नहीं पता है, तो उसको आप नोट डाउन कर लिया करिए, वो आपको लास्ट मिनट में बहुत काम आएगा। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट वीडियोज़,
तो करियर डिफाइनर इज़ द बेस्ट चैनल। आई वुड अगेन टेल यू कि करियर डिफाइनर से बेस्ट और कोई चैनल नहीं है। वहाँ पर सर ने, कौशिक सर ने बहुत बेस्ट तरीके से सारे के सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है आप करियर डिफाइनर में जाकर सर्च कर सकते हैं। मेरिट शाइन इज़ वन सच अनदर चैनल जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्वांट की, या कोई भी चैप्टर आप यहाँ से नहीं समझ में आ रहा है या और कहीं से नहीं समझ में आ रहा है तो ये आपको मैंने एक और चैनल बता दिया है। अड्डा 247 आपने सुना होगा, तो उसमें IBPS PO, ये मैं हमेशा कहती हूँ, ये रीजनिंग के लिए भी सेम है, ठीक है। रीजनिंग क्वांट हो गया, इंग्लिश हो गया, ये आपको कंटेंट मैं आपको बता रही हूँ फ्री यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई हैं हर एग्जाम से रिलेटेड, वो IBPS PO हो या SBI PO हो, उन सब की प्लेलिस्ट अलग से डली हुई है। इसमें क्या होगा, SBI PO की जो प्लेलिस्ट पिछले साल की डली होगी, इसमें इंग्लिश के 30 to 35 वीडियोस होंगे। सिमिलरली फॉर क्वांट एंड रीजनिंग अलग अलग से होंगे। इसको आप लाइन बाय लाइन वॉच कर सकते हैं, बिल्कुल आपका एक बेसिक जो है ना वो पूरा बिल्ड हो जाएगा। तो वीडियोस मैंने आपको यहाँ पे बता दिए। करियर डिफाइनर इज द बेस्ट चैनल फॉर दिस कंटेंट। आपको सिमिलरली गाइडली के PDF कोर्स, अगर आपको कुछ भी कहीं और सर्च नहीं करना है तो आप गाइडली के PDF कोर्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, परचेज कर लीजिए, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। GS12 ये कोड लगा देंगे तो और ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो उसको परचेज करने पे आपको वहाँ पर डे बेस्ड प्रिपरेशन करवाई जाती है, मैंने आपको शो भी किया हुआ है किस तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स वहाँ पे आपको कवर कराए जाएंगे। डे 1 में रीजनिंग के इतने क्वेश्चंस, क्वांट के ये सारे टॉपिक्स के इतने क्वेश्चन, इंग्लिश के इतने क्वेश्चन, इस तरीके से आपको PDF प्रोवाइड किया जाता है हर दिन, ठीक है। डे 2 का अलग PDF होगा। इस तरीके से डे 50 तक जाता है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिएगा, ठीक। बुक अगर हम बात करें क्वांट की तो बेस्ट एवर बुक है स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक। इसका रिव्यू मैंने अपने चैनल पे किया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी, ये आप सर्च कर लीजिएगा। अगर आप बुक से पढ़ना चाहते हैं तो ये बेस्ट बुक है, ठीक है, स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक। टाइम आपको रीजनिंग की तरह इसे भी 3 आवर्स 2 to 3 आवर्स क्वांट को देने हैं। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। नाउ लेट्स मूव टू इंग्लिश सेक्शन। बस अब हम लोग जल्दी मूव करेंगे बिकॉज वीडियो ज़्यादा लेंदी हो रही है। तो देखिए, इंग्लिश के लिए आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। आपको 5 RC डेली सॉल्व करने हैं, जिसमें एक थोड़ा सा हाई लेवल का रहेगा, ठीक है। मैंने आपको बुक रिकमेंड किया हुआ है, अगर आपने वो बुक परचेज की होगी, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 होता है, तो लेवल 3 जो उसमें हाईएस्ट लेवल का है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं फॉर मेंस, ठीक है। मैंने जो स्मार्ट बुक रिकमेंड की हुई है, नहीं भी आप परचेज किए हैं, कुछ और यूज़ कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कह रही हूँ कि अगर 5 RC आप प्री लेवल के करेंगे तो उसमें से एक जो है वो मेंस के लिए होना चाहिए, ठीक है। पैराजम्बल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 2 से 3 पैराजम्बल्स डेली आप सॉल्व करिए। एरर स्पॉटिंग 10 क्वेश्चन करिए। इडियम्स एंड फ्रेजेस को 5-5 डेली लर्न करिए और उसको नोट डाउन करिए, ठीक है, विद अ सेंटेंस फॉर ईच। आपको अगर क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के लिए अलग अलग से डिटेल्ड वीडियो भी चाहिए होगी ना, इसमें तो वैसे मैं सब कुछ इंक्लूड कर रही हूँ, कुछ छूटेगा नहीं, लेकिन फिर भी अगर आपको अपने सेटिस्फैक्शन में देखना है तो ये तीनों मैंने अलग अलग से भी बनाई हुई है। अभी लास्ट के 10 वीडियोस में ही आपको ये तीनों मिल जाएंगी, तो उसे आप देख लीजिएगा, ठीक, अगर देखना होगा तो। अदरवाइज ये इनफ है। द हिंदू एडिटोरियल जो है वो आपको डेली पढ़ना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। वो कैब डायरी आपको मेंटेन करनी है और एक आर्टिकल लेकर डेली समरी आप मेंटेन करेंगे द हिंदू से, ठीक है। आगे चल के मैं एक वीडियो और बनाने वाली हूँ कि एडिटोरियल को हम एफिशिएंटली कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे उसके आर्टिकल को अच्छे से पढ़ सकते हैं। क्लोज टेस्ट के 5 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। मैच द कॉलम के 5 क्वेश्चन डेली। सिंगल फिलर्स, डबल फिलर्स 5 क्वेश्चन डेली। वर्ड यूसेज के क्वेश्चंस हैं। कनेक्टर्स के 5 क्वेश्चन डेली, जैसे 2 सेंटेंस दिया रहता है, उसको कौन से सेंटेंस से बीच में कनेक्ट किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो वो आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं। फ्रेज रिप्लेसमेंट आपको 5 क्वेश्चंस करनी है। फिर पैराग्राफ कंप्लीशन वगैरह के भी क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें डेली नहीं लिखा है ना मैंने, उसको आप ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज में या ऐसे 2-3 डेज के गैप में भी सॉल्व कर सकते हैं। बट जहां पर मैंने पूरा डेली लिखा है, ये आपको करना ही करना है, ठीक है। डेली एडिटोरियल के सेशंस के लिए आप निमिषा मैडम का चैनल वॉच कर सकते हैं। वो बेस्ट वहाँ पर डेली एडिटोरियल के सेशंस लेती हैं। स्किमिंग उनकी जो सबसे बेस्ट इनिशिएटिव है, वहाँ पर वो लर्न कर सकते हैं। बुक्स के लिए मैंने अगेन आपको स्मार्ट बुक का जो बुक है वो रिकमेंड किया था, स्मार्ट बुक बाय टेक्स्ट बुक, ये बेस्ट बुक है। और रूल्स के लिए अगर आपको लेना है तो निमिषा मैडम का 120 रूल्स ऑफ ग्रामर, ये आप परचेज कर सकते हैं। ये बुक नहीं भी परचेज कर रहे हैं तो इसका ऑल्टरनेटिव है, निमिषा मैम के चैनल पे रूल्स के वीडियोज डले हुए हैं, है ना।
ना 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स के वीडियोस डले हुए हैं, उसको आप वॉच कर सकते हैं। और ये सब कुछ अगर आपको नहीं करना है, कंटेंट आपको एक जगह पे अवेलेबल करना है, तो आप गाइडली का PDF कोर्स अवेल कर सकते हैं। टाइम आपको 2 आवर्स इंग्लिश को देना है। इफ यू आर एन एवरेज स्टूडेंट इन इंग्लिश, थोड़ा आपको ज्यादा एफर्ट अगर लगाना है तो 3 आवर्स आप दे सकते हैं। ठीक, ये हो गई इंग्लिश की बात। थोड़ा सा मैंने जल्दी से इसे कंप्लीट किया है, तो अगर आपको इंग्लिश रिलेटेड एक फुल वीडियो देखना होगा तो आप चैनल में जाकर लास्ट के 10 वीडियोस में आपको इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग तीनों से रिलेटेड अलग अलग वीडियोस मिल जाएंगी, उसे आप वॉच कर सकते हैं, जिसमें भी आपको थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए। वैसे मैंने सब कुछ यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, तो डिस्क्रिप्टिव में आप जानते हैं PO मेंस में डिस्क्रिप्टिव का पेपर आएगा। RRB PO में नहीं आता, लेकिन IBPS PO एंड SBI PO में आएगा। सो एस्से और लेटर आएगा। SBI PO में 50 मार्क्स का होता है डिस्क्रिप्टिव, IBPS PO में 25 मार्क्स का, 15 मार्क्स का ऐसे होता है, 10 मार्क्स का लेटर होता है। पर दोनों के लिए टाइमिंग जो दी जाती है वो ½ एन आवर की टाइमिंग दी जाती है। डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं एक वीडियो बहुत जल्दी बनाने वाली हूँ, थोड़ा सा और डिटेल में। बाकी अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन से। और याद रखिएगा, प्रैक्टिस जो आप करेंगे वो लैपटॉप या PC में ही करिएगा। और इसका जो मटीरियल है, जैसे मेरिट शाइन और इन्फिनाइट से मिल करके एक चैनल है, इन दोनों पे आपको लेटर और एस्से से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल्ड स्ट्रैटेजी समझा दी जाएगी कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, लेटर का तो फॉर्मेट ही इनफ होगा, फॉर्मेट दिया जाता है उनके द्वारा कि इस तरीके के, मतलब 20 वो लेटर्स आपको बता देंगे, उसमें से ही आता है, या तो उससे बाहर भी आया तो वो 20 लेटर्स अगर आप पढ़ लिए ना, तो आपको एक आइडिया हो जाता है कि हमें लेटर को किस तरीके से करना है। ठीक है, ऐसे से रिलेटेड बहुत ज्यादा हेल्प हो जाती है हमारी द हिंदू का एडिटोरियल से, जो कि जिसका हम समरी वगैरह में प्रिपेयर करने बोलती हूँ, शॉर्ट नोट्स वगैरह। तो वो जब आप पूरा समझ लीजिए, आज से ही आपने प्रिपेयर किया है, और इंटरव्यू तक या ये डिस्क्रिप्टिव जब मेंस का पेपर, ये दोनों में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी द हिंदू के एडिटोरियल से, जो आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे। तो इसलिए मैं आपको कहती हूँ कि ये तो हमें करना ही करना है। हम आते हैं अपने फाइनल पार्ट में, दैट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स से रिलेटेड बहुत ही डिटेल्ड अच्छे से मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हुए 1 से 2 वीडियो बनाई हैं, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फिर भी एक समराइज्ड वे में मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर कि आपको किसी भी चैनल से अगर आप डेली वीडियोस फॉलो कर रहे होंगे तो बिल्कुल आप उससे फॉलो करिए। मैंने अपने टाइम पे जो फॉलो किया था वो अड्डा 247 में जो आशीष सर पढ़ाते हैं उनको फॉलो किया था। तो आपको हमेशा 2 सोर्सेज लेकर चलनी है। ठीक है, डेली वीडियोस और उसके साथ में अफेयर्स क्लाउड का PDF। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे अफेयर्स क्लाउड के PDF से ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। अगर आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हैं, आपने नहीं लिया है अफेयर्स क्लाउड का PDF, तो काइंडली लिंक दिया हुआ है मैंने इस वीडियो में भी, आप जाकर अफेयर्स क्लाउड का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ेगा, आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलता है, प्लस उसमें अगर आप ये SR10 ये कोड लगा देंगे तो आपको 10% ऑफ मिल जाएगा। इसमें आपको डेली PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और साथ ही साथ में आपको क्विजेस मिलते हैं, और साथ में और भी बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। मैं एक वीडियो आपको लिंक अप कर दूंगी जिसमें मैंने लिखा हुआ है हाउ टू स्टडी करंट अफेयर्स फ्रॉम अफेयर्स क्लाउड। उसमें आपकी सारी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे अगर आप बिल्कुल न्यू हैं तो, अदरवाइज सब जानते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपको उससे डेली PDF से डेली पढ़ना है, और जो डेली के डेली क्विजेस होते हैं उसको सॉल्व करना है। पहली चीज़ ये करनी है। दूसरी, वीकली रिवीजन आपको करना है। इन सारे डेली PDFs का एक बार वीक में रिवीजन करना है। और फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने मतलब फुल हार्ट से फॉलो किया है, डेडिकेटेडली फॉलो किया है, आप अगर बोलेंगे तो मैं आपको यहीं पर सारे मंथ्स के जो मेरे पिछले साल के होंगे ना, रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ 1 सेकेंड। ये देखिए, कुछ बहुत पहले के पुराने मंथ्स के यहाँ पर आपको अफेयर्स क्लाउड का PDF दिख रहा होगा, जो मैंने अभी तुरंत निकाला हुआ है। और ये सारा आई यूज टू स्टडी ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन टाइम। तो ये तो आपको रिलीजियसली फॉलो करना है। कौन सी PDF की मैं बात कर रही हूँ? Q&A PDF की। ठीक है, जो अफेयर्स क्लाउड में आपको मंथली Q&A PDF मिलता है, उसकी बात कर रही हूँ। मैंने रिलीजियसली उसको फॉलो किया है। ठीक है, आप दूसरे जैसे कि पॉकेट PDF वगैरह भी बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, लेकिन इससे मुझे सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है। तो अफेयर्स क्लाउड में सबसे ज़्यादा मैंने Q&A PDF को फॉलो किया है। इसका सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिएगा अगर नहीं लिया है तो। 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स इनफ है आपके प्रिपरेशन के लिए। जैसे अभी अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो जुलाई से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अब उसके बाद आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं शॉर्ट हेड्स के अंदर, ये मैंने आपको करंट अफेयर्स की वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां जाके आप रेफर कर सकते हैं। मैं आपको लिंक दे दूंगी, आप एक बार देख लीजिएगा अगर आप कोई न्यू सब्सक्राइबर हैं तो। ठीक है, अदरवाइज मैंने ये एकदम अच्छे से पहले एक्सप्लेन किया हुआ है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने हैं आपको शॉर्ट हेड्स के अंदर।
लास्टली वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मॉक टेस्ट। तो पहले 20 डेज में आपको अभी ऑल्टरनेटिव जैसे कि 2 दिन में 1 मॉक टेस्ट देना है, उसके बाद जो नेक्स्ट 10 डेज रहेंगे उसमें 1 मॉक टेस्ट पर डे देना है। उसके बाद जब एग्जाम बिल्कुल पास में आ जाता है ना, तब तो हमें 2 से 3 पर डे देने होते हैं। प्री में हमको ये करना है। मेंस के लिए मैं ज़्यादा मॉक टेस्ट वगैरह रिकमेंड नहीं करूंगी। आप अगर मेंस की प्रिपरेशन के दौरान हफ्ते में 1 बार भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं देन इट इज़ मोर देन इनफ। और अभी आप जब प्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप 15 डेज में 1 बार मेंस के मॉक टेस्ट दे दीजिएगा, ठीक है। मतलब पूरे इस प्रिपरेशन टाइम में 40 to 45 डेज में आप 2 से मैक्सिमम 3 मेंस के मॉक्स एक बार देकर देख लीजिएगा, ठीक। सो दैट वाज ऑल अबाउट मॉक टेस्ट। और मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे गाइडली का मॉक टेस्ट फॉलो किया है प्लस स्मार्ट कीड़ा, ये दोनों मुझे बेस्ट लगते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। गाइडली के मॉक टेस्ट जो है अभी फिलहाल एग्जाम का जो पैटर्न आ रहा है ना, वो थोड़ा सा ना हाई लेवल आ रहा है पिछले कुछ ईयर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। उस पैटर्न को गाइडली ने बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन किया है। तो आपको अगर अभी मॉक टेस्ट लेना है तो आप गाइडली का मॉक टेस्ट ले सकते हैं। आपको वही लिंक जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करूंगी वहां से ये भी मिल जाएगा, ठीक है। So the time for you starts now, my dear friends. Remember, success is not overnight. It's when every day you get a little better than before. Actually, it adds up. Okay. So all the very best for this journey, for this preparation journey. Let's have a new start and have our dream job in our hand. Okay. So आप बिल्कुल आज से लग जाइए। नेक्स्ट डे से आज अपनी स्ट्रैटेजी बना लीजिए, मुझे क्या करना है, कैसे करना है। बिल्कुल आज से लग जाइए। आपको किसी में भी ज़्यादा टाइम नहीं देना है। रीजनिंग में आपको 3 आवर्स देने हैं, क्वांट में 3 आवर्स, इंग्लिश में 2 से 3 आवर्स, हिंदू एडिटोरियल के लिए, द हिंदू एडिटोरियल के लिए 1 आवर, करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए 1 आवर, और मॉक टेस्ट जो कि आपको भी फिलहाल ऑल्टरनेटिव देना है, फिर भी मैंने 1 आवर लिख दिया है। तो इन सब को मिलाकर भी आपके 10 आवर्स हो रहे हैं जो आपकी प्रिपरेशन के लिए मस्ट है। सो दैट वाज ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज साबिया signing off. See you all in our next session. I hope this video helped you a lot. So see you in our next class. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you for watching.